اس کی بھی مجھے پاسبلٹی بڑی کم نظر آتی ہے کہ ایران کسی طرح سے ان کے سامنے دب جائے گا. لیکن جب امریکہ اس سچویشن کے اندر اپنے سارے بہترین ہتھیار استعمال کرتے ہوئے، سرپرائز کا استعمال کرتے ہوئے اپنے وہ ہدف حاصل نہیں کر پایا، اب تو اس کی پوزیشن پہلے کے مقابلے اور بہت کمزور ہو گئی ہے. آج ایران نے جتنے اس کے میزائل لانچرز تھے، ان کی جو جگہیں تھی، جو ان کی پروڈکشن تھی، جو ان کی سٹوریج تھی، ان سب کو بڑی تیزی سے انہوں نے دوبارہ سے درست کر لیا ہے، اور وہ کہیں بہتر پوزیشن میں ہے جنگ لڑنے کی. جب بھی کوئی میزائل ایران کی طرف سے فائر ہوتی تھی تو ان گلف کنٹریز کے اندر جو امریکن ریڈارز لگے ہوئے تھے وہ انہیں کیچ کر کے سب سے پہلے اسرائیل کو خبر دیتے تھے، تاکہ اسرائیل کے پاس ریئیکشن ٹائم بہت ہوتا تھا ان میزائلوں کو روکنے کا. جب سے ایران نے ان کے ان اڈوں کو تباہ کیا ہے اور ان کے ان ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا ہے، تب سے اسرائیل کے پاس جو ریئیکشن ٹائم ہے جو یہ گلف اسٹیٹس پرووائڈ کیا کرتی تھی وہ بڑا کم رہ گیا ہے ان کے ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ. اچھا، کیونکہ ایران نے اپنی ڈیل میں ایک شرط اور رکھ دی تھی کہ یہ جو ڈیل ہے یہ ایکسٹینڈ کرے گی لبنان اور اسرائیل کے جنگ بندی کے لیے بھی. آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی لگتا ہے کہ کہیں ڈیل ہونے جا رہی ہے، اسی وقت میں اسرائیل اپنے حملے تیز کر دیتا ہے، لبنان کے اوپر بھی، غزہ کے اوپر بھی، اور اس نے سیریا کے اندر بھی اپنے انکرجن کیے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جنرل صاحب، جس طرح کی یہ حالات ہیں آپ سب آپ کے سامنے، بات چیت بھی ہو رہی اور حملہ بھی ہو رہا، بات چیت بھی ہو رہی اور سازش بھی ہو رہی. یہ تیسرا موقع ہے اب کہ جب پھر بات چیت کے دوران جب حد جاری تھا تبھی اٹیک کیا، ابھی پھر ترمیم کی گئی. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا جنگ ہوگی؟ آج IRGC نے بالکل کلیئر کر دیا. جاوید اقبال صاحب. جی ممتاز بھائی، السلام علیکم آپ کو، آپ کے سبھی سننے والوں کو، اور آپ راشد بھائی، اور جے ہند، آپ سب کو جے ہند. دیکھیے، میں نے آپ کی جذباتی ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں سنی. بہرحال یہ سب حقیقت ہے جو آپ نے بیان کی ہے. لیکن دیکھیے، کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں، تو بڑے صبر کے ساتھ اور اپنے ذہن کا استعمال کرتے ہوئے ان ساری حقیقتوں کو ہمیں اینالائز کرنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے. تو شروعات کرتے ہیں کہ جنگ سے. دیکھیے، پچھلی بار جب آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے تو آپ کے سامنے یہ ہم نے بتلایا تھا کہ دیکھیے، امریکہ کے یا ٹرمپ کے سامنے 3 آپشن. پہلا آپشن تو یہ ہے کہ وہ بات چیت کا راستہ چھوڑ کے جنگ میں جائے اور پوری طرح سے اپنی ساری قوت کا استعمال کرتے ہوئے دوبارہ ایران کے اوپر یہ جنگ مسلط کر دیں. لیکن جب وہ اس میں جائیں گے تو کسی بھی جنگ میں جانے سے پہلے اپنا ہدف، اپنا جو آبجیکٹو ہے وہ طے کیا جاتا ہے. اگر آج میں ٹرمپ کی نظر سے دیکھوں تو امریکہ کا کیا آبجیکٹو ہوگا اگر وہ دوبارہ جنگ میں جانا چاہتا ہے؟ اس کے 2-3 آبجیکٹو ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنی فورس کا استعمال کرتے ہوئے ایران کو اتنا جھکا دے یا دبا دے کہ ایران اس کی شرطوں پہ بات چیت کے لیے تیار ہو جائے اور اس کی ساری شرطیں مان لے. دوسرا ان کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایران کے اندر یورینیم ہے وہاں پہ اپنی گراؤنڈ اور ایئر فورسز کے ذریعے اس یورینیم کو نکال کر لے آئے وہاں. تو تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی گراؤنڈ فورسز بھیج کے جو ایران کا وہ خرگ آئی لینڈ ہے اور جو ایران کے مین پورٹس ہیں جن سے ان کی ساری تجارت ہوتی ہے، ان سارے پورٹس پہ قبضہ کر لے.
ये इनके 2-3 पॉसिबल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन क्या अमेरिका अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए या इजराइल की भी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इनमें से किसी भी ऑब्जेक्टिव को हासिल करने की पोजीशन में है? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जब अमेरिका ने 28 फरवरी को ये जंग शुरू की थी, उस वक्त अमेरिका के हाथ में सरप्राइज था, उनकी मैसिव प्रिपरेशन थी और हर चीज की तैयारी थी उनकी। इसके अलावा ईरान के अंदर इंतशार भी था और एक ईरान का तबका उनकी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट में भी लगा हुआ था। तो वो बड़ी आइडियल सिचुएशन अमेरिका के लिए थी। लेकिन जब अमेरिका उस सिचुएशन के अंदर अपने सारे बेहतरीन हथियार इस्तेमाल करते हुए, सरप्राइज का इस्तेमाल करते हुए अपने वो हदफ हासिल नहीं कर पाया, अब तो उसकी पोजीशन पहले के मुकाबले और बहुत कमजोर हो गई है। आज ईरान ने जितने उसके मिसाइल लॉन्चर्स थे, उनकी जो जगह थी, जो उनकी प्रोडक्शन थी, जो उनकी स्टोरेज थी, उन सब को बड़ी तेजी से उन्होंने दोबारा से दुरुस्त कर लिया है और वो कहीं बेहतर पोजीशन में है जंग लड़ने की। जबकि दूसरी तरफ जो अमेरिकी फौजें हैं, उनके जहां पे अड्डे थे इन गल्फ नेशंस के अंदर, वो किसी को भी अपना रिपेयर नहीं कर पाए हैं। जो उनकी मिसाइलों का स्टॉक था और इंटरसेप्टर्स का स्टॉक था, वो उसको बहुत हद तक खर्च कर चुके हैं और वो उसको स्टॉक को रिप्लेनिश नहीं कर पाए हैं। तो इस पोजीशन में अगर अमेरिका पूरी तरह से जंग में जाता है, उसे मेरी नजर में कुछ भी हासिल नहीं होगा, किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव उसका हासिल नहीं होगा। इसके बरक्स ईरान इस पोजीशन में है कि अमेरिका का बहुत शदीद नुकसान कर सकता है और उन्हें बड़ी गहरी चोट पहुंचा सकता है। उनके पास इस ऑप्शन के अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जो अभी अनसर्टेनिटी की सिचुएशन चल रही है, इसको चलने दें और इसी चलने में इस तरह से डिले करें, बातचीत में कुछ इस तरह से डाला जाए कि वो जैसा चाहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, जो वो जंग से पहले की सिचुएशन में था उसके अंदर आ जाए, या किसी तरह से जो ईरान का यूरेनियम है उसके ऊपर कोई फेवरेबल डील हो जाए। तो अगर मैं आज के हालात को एनालाइज करके देखूं, तो उसकी भी मुझे पॉसिबिलिटी बड़ी कम नजर आती है कि ईरान किसी तरह से इनके सामने दब जाएगा। क्योंकि ईरानियन जो पिछले भी निगोशिएशन, जो न्यूक्लियर डील अमेरिका और यूरोपियंस के साथ ईरान ने की थी, तो जो उनके निगोशिएटर्स थे, उनके में अक्सर ये कमेंट पढ़ा करता था कि अमेरिकन्स आर दैट ईरानियंस आर टफ निगोशिएटर। वो बहुत बेहतरीन निगोशिएटर हैं और बहुत अच्छी बार्गेनिंग करते हैं, उनसे पार पाना इतना आसान नहीं है। तो वही यहाँ पे निगोशिएशन की सिचुएशन मुझे चलती नजर आ रही है। इमेजिन कीजिए अगर यही सिचुएशन चलती रहती है, तो आने वाले टाइम पे क्या होगा? अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर तिजारत इसी तरह से रेस्ट्रिक्टेड रहती है, कम रहती है, तो इसका असर दुनिया की सारी इकोनॉमी पे होगा। उसमें अमेरिका के ऊपर भी होगा, उसके इत्तेहादियों के ऊपर भी होगा। जहां तक ईरान की बात है, कि जो ईरान है, देखिए मैं पहले भी कहता रहा हूं कि ईरान के ऊपर पिछले 47 साल से सैंक्शंस लगे हुए हैं और उन्होंने एक बड़ा अच्छा अपना नेटवर्क खड़ा किया हुआ है कि इन सैंक्शंस को कैसे इवेड करना है और कैसे इसके बावजूद, इन सैंक्शंस के बावजूद अपनी इकोनॉमी को चलाना है। तो वो अपनी इकोनॉमी को चलाने के उन्होंने बहुत सारे रास्ते नए खोज लिए हैं। उनकी तिजारत तुर्की से भी बढ़ी है, अजरबैजान आर्मीनिया से भी बढ़ी है और खास तौर से कैस्पियन सी के जरिए रूस के साथ बहुत बढ़ी है। उसके अलावा अफगानिस्तान के साथ भी। और पाकिस्तान ने तो जैसा पिछली बार मैंने अर्ज किया था, उनके लिए 6 लैंड रूट्स और तीनों अपने पोर्ट गवादर, कराची और मोहम्मद बिन कासिम खोल दिए और अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है। तो जहां तक उनका अपना इकोनॉमिक सिस्टम था, ईरान उसे बड़ी बेहतरीन तरीके से मैनेज कर रहा है।
और ट्रंप के ब्लॉकेड का या इस अनसर्टेनिटी की सिचुएशन का ईरान बेहतर पोजीशन में है ज्यादा लंबे अरसे तक सामना करने की। तो अब ट्रंप के पास क्या ऑप्शन बचा है? कई बार मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिकन जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस कैफियत में आ गए हैं कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारे उनके ऊपर कंपीटिंग प्रेशर्स हैं। जैसे अमेरिका के अंदर भी बहुत सारी लॉबीज ऐसी हैं और इजराइल के अंदर भी लॉबीज ऐसी हैं। उन्हें ये लगता है कि जो डील होने जा रही है, अगर वो डील हो गई तो ये इजराइल के लिए बड़ी तबाहकुन साबित होगी। इसीलिए उनकी ये पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से इस डील को सबोटाज किया जाए। अच्छा, क्योंकि ईरान ने अपनी डील में एक शर्त और रख दी थी कि ये जो डील है ये एक्सटेंड करेगी लेबनान और इजराइल के जंगबंदी के लिए भी। आप देखेंगे कि जहां भी लगता है कि कहीं डील होने जा रही है, उसी वक्त में इजराइल अपने हमले तेज कर देता है लेबनान के ऊपर भी, गजा के ऊपर भी, और उसने सीरिया के अंदर भी अपने इनकर्जन किए हैं। तो एक जो ये उसकी मैसेजिंग है, जिस तरह से उन्होंने लेबनान पे हमले तेज किए हैं, ये ईरान डील को सबोटाज करने का भी एक उनका तरीका है। आपने जैसे बोला कि देखिए अभी इजरायली फोर्सेस लिटानी रिवर को क्रॉस करके आगे बढ़ गई है, और जो वहां पे एक बड़ा फेमस ब्यू फोर्ट कास्टल था जो कि क्रूसेडर्स ने बनाया था, जब उन्होंने आके इस इलाके पे कब्जा किया था, जब क्रूसेड शुरू हुए थे 1099 में, इस ब्यू फोर्ट कासिल के ऊपर भी इजराइल ने कब्जा कर लिया था। लेकिन देखिए, मैं आपके सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ, इजराइल ने 1982 में जब लेबनान के ऊपर पहला हमला किया था, तब ये फिलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन, जो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी, यासिर अराफात का हेडक्वार्टर बेरूत में हुआ करता था। और उस वक्त भी अपने पहले ही मरहले में उन्होंने लिटानी रिवर को क्रॉस करके इस ब्यू फोर्ट कासिल पे कब्जा कर लिया था। लेकिन हिजबुल्लाह के कयाम में आने के बाद उन्होंने बड़ी जबरदस्त मुजाहिमत की इजरायली फोर्सेस की, और उन्हें मजबूर किया कि सन 2000 की जुलाई में वो ये सारा इलाका छोड़ के उन्हें वापस आना पड़ा था। आज ये दोबारा उस कासिल पे पहुंच गए हैं, लिटानी रिवर को भी उन्होंने क्रॉस कर लिया है, मगर ये वहां तक पहुंच तो सकते हैं लेकिन उसे अपने कब्जे में रख नहीं सकते बहुत लंबे अरसे तक, क्योंकि जिस तेजी से इनकी यहाँ पे मुजाहिमत होगी इजरायली मिलिट्री का, वहां पे जम पाना या टिक पाना मेरी अंडरस्टैंडिंग में बड़ा मुश्किल होगा। और क्योंकि ईरान की शर्तें भी हैं लेबनान को और इजराइल को लेके, तो फिलहाल ये वहां पे सिचुएशन है। और जो इजरायली हैं, देखिए, जो आपने बात कही कि लेबनान में आगे बढ़ गए, गजा में किलिंग चल रही है, ये सारी चीजें हैं कि ये सारे मुल्क ऐसा क्यों नहीं करते? देखिए, ये ऐसा नहीं कर सकते। आपको ये समझना पड़ेगा, जैसा हम बताते रहे कि ये अमेरिका और इजराइल, ये इन दोनों के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का हिस्सा, और इनकी हिफाजत खुद अमेरिका और इजराइल करता रहा है। अब जब वो आर्किटेक्चर ईरान ने तोड़ दिया है, तो अब ये उसके मुतबादिल तलाश कर रहे हैं। अब ये अपना ऑल्टरनेटिव कोई सिक्योरिटी सिस्टम तलाश कर रहे हैं, जिसमें ये तुर्की और पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, और उसके साथ साथ ईरान से भी अपने रिश्ते सुधार रहे हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये इस खित्ते का मुस्तकबिल बदल रहा है, इसकी जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, और अमेरिका और इजराइल की जो पोजीशन इस जंग से पहले थी, या 7 अक्टूबर 2023 की जंग से पहले थी, वो पोजीशन अब दोबारा कायम नहीं हो सकती। उन्हें यहां से अब उनका मेरे असेसमेंट में तेज डिक्लाइन है। अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि बहुत लंबे अरसे तक इस खित्ते में जमा रहे। ग्रेजुअली उसे ये इलाका छोड़ के जाना पड़ेगा, और जैसे जैसे अमेरिका का यहाँ से इनखला होगा, उसके साथ साथ ही
जैसे जैसे यहाँ पे नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर खड़ा होगा, जो इजराइल का अपना सिक्योरिटी निजाम है, जो उसका डिफेंस स्ट्रक्चर है, वो भी कोरेस्पॉन्डिंगली कमजोर होगा, क्योंकि ये सारे मुल्क न सिर्फ अमेरिका की मदद कर रहे थे, बल्कि इजराइल के भी सिक्योरिटी सिस्टम को प्रोटेक्ट करते थे। जब भी कोई मिसाइल ईरान की तरफ से फायर होती थी, तो इन गल्फ कंट्रीज के अंदर जो अमेरिकन रडार्स लगे हुए थे, वो उन्हें कैच करके सबसे पहले इजराइल को खबर देते थे, ताकि इजराइल के पास रिएक्शन टाइम बहुत होता था उन मिसाइलों को रोकने का। जब से ईरान ने उनके इन अड्डों को तबाह किया है और उनके इन रडार सिस्टम को निशाना बनाया है, तब से इजराइल के पास जो रिएक्शन टाइम है, जो ये गल्फ स्टेट्स प्रोवाइड किया करती थी, वो बड़ा कम रह गया है इनके टूटने के साथ साथ। तो मेरी नजर में हौसला रखने की जरूरत है। सिचुएशन सही तरफ जा रही है और यहाँ पे सिचुएशन बदल रही है और जो पॉलिटिक्स भी बदल रही है। किसी के फिलहाल टेम्परेरी तौर पे आगे बढ़ने से या बच्चों के या सिविलियन की हलाकत से आप ये ना समझें कि उन्होंने इस जंग का कोई आउटकम शेप कर दिया है या कोई बहुत बड़ी मिलिट्री फतह हासिल कर ली है। मेरा ऐसा असेसमेंट है, और खास तौर से जो ये असेसमेंट मैंने दिया है, ये मुमताज भाई के जज्बात को देखते हुए भी मैंने ये अपनी बातें आप लोगों के सामने रखी। जी मुमताज भाई।